दोस्तों सबसे पहले जय श्री राम और जय हिंद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रघुनाथन का वीडियो। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आराम करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या होता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Dr. Ranganathan, how do you view this conversation that has taken place between the Prime Minister and also the expectation of the West of India in general? Good evening, Rahul, and good evening to my fellow panelists. I speak out here strictly as a layman to learn things because we have an exalted panelist, Mr. Sibal, among the panel, and talking foreign policy in front of him is like taking coal to Dhanbad. So that's the caveat there. But, I think Mr. Modi now is officially the only world leader to have given a bear hug to Mr. Zelensky as well as to Mr. Putin right in the middle of a war. I think India, for the first time, is walking that thin line. Some may call it being neutral, but that is how strong nations have traditionally been. Good thing is India is not crawling on the thin line. It is standing up and walking. And it is exposing in doing so the hypocrisy which is on display of the rest of the world, which is just astonishing. And you touched on it a little bit. Let me expand on that. Has the West or Ukraine, with which I have tremendous sympathy, and one of the panelists is a Ukrainian there, in solidarity with you, ma'am. But has the West or Ukraine or any of the 50-odd Islamic nations put sanctions on China for interning 1.5 million Muslims in concentration camps and forcibly sterilizing them and feeding them pork? Have any activists asked for China to be blacklisted because it never apologized for Tiananmen Square massacre that murdered 10,000 innocents? Have we castigated Ukraine for siding with Pakistan in United Nations resolutions? Manmohan Singh called India George Bush's greatest friend, even as he was bombing and killing Muslims in the Middle East, because we wanted the nuclear deal. And Europe, that 2 years into the Russian invasion of Ukraine, continues to buy 13 million metric tons of coal, 43 billion cubic meters of gas, and 17.5 million metric tons of oil from Russia. He's now lecturing India on morality and ethics. Germany right now is buying Russian fuel from Belgium and Holland. Europe is buying refined Russian fuel from Jamnagar, India. And what to say about the Americans? You were importing 9% of your crude from Russia well beyond the Ukraine invasion. You sat on your bum when China violated the LAC in 2020. It was Russia, erstwhile Soviet Union, that helped us in 1971 when you sided with Pak. And as for the so-called armchair holier-than-thou activists both in the West and out here, when Russia attacks Ukraine, ban ordinary Russians from football tournaments and sporting and singing contests. But when Pakistan attacks India, kills our Jawans, launches terror attack on our parliament, hey, come on, be sensible. Allow ordinary Pakistanis to play cricket and act in Indian films. So these turnips can stuff their hypocrisy in their hookah and smoke it. Look, the Ukraine war apart, Rahul, for which I condemn Russia. Why should India be singled out for looking after its interests? Cheap oil and gas from Russia has allowed us to keep our inflation in check. It is the lowest in 5 years, 3.5%. The same inflation that had it gone up, the opposition would have cried out for keeping it in check by buying cheap Russian oil and gas. There are many experts here who would elaborate in detail about the various domains in which we enjoy excellent relations with Russia, with our bilateral trade now more than $70 billion. There's oil and gas, there's economic partnership, and there's excellent defense partnership, S-400, AK-203, BrahMos, etc. But let me concentrate on one aspect that is often ignored. I think the time has come, Rahul, for us to realize that we are what we are and what we are going to be because of hard power and not soft power. Doubtless, it is great whenever India gets recognized as a soft power, dance, music, culture, knowledge, math, religions. No one has gifted more to the world than India. But it is also a fact that soft power goes hand in hand with hard power. You know which country is ranked first in Portland Soft Power Index? A country that is only 200 years old, USA. Yes. And yet it is number one soft power. Fact is, India was a soft power center when it was also a hard power center. Once it was colonized, subjugated, its soft power reached, also collapsed. Little changed after independence. India has forever had a shambolic foreign policy, because of which we have always been made to sit on a rickety stool adjacent to the big table. Just 30 seconds. Rahul, we must now drag a chair and sit alongside the powers that are. We are finally seeing the face of new India. It has taken 10 years for the Modi dispensation to stand up to Western bullying and to expose their hypocrisy and stand by our friends. Bottom line is, Russia is a trusted friend. And talking of friends, just 10 seconds. What is it the old rogue Kissinger said? To have America as an enemy is dangerous.
but to have America as a friend is fatal. दोस्तों पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर आनंद रंगनाथन ने इस वीडियो में जैसे बोला है कि रशिया यूक्रेन का जो एक विवाद चल रहा है अभी भी उधर, किसके कारण चल रहा है? मेरे ख्याल से तो ये विवाद एक ही कंट्री के कारण चल रहा है, वो है यूएसए और उनका एक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नेटो। नेटो और यूएसए ने मिलकर ये कॉन्फ्लिक्ट को अभी तक बढ़ा कर रखा है, क्योंकि यूक्रेन के पास इतने सारे एबल बॉडीड मैन नहीं है कि वो लड़ाई जाके लड़ सके, और यूएसए के पास तो पता ही आप लोगों को मैन्युफैक्चर्ड वॉर्स लड़ते रहते हैं उनका डीप स्टेट, और उनका डीप स्टेट के कारण ही इधर हमारे इंडिया में जो बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ है वो भी उधर उसके कारण ही हुआ है, उस डीप स्टेट के कारण। वो डीप स्टेट इतना शेमलेस डीप स्टेट है, क्योंकि वो डीप स्टेट तो अभी पूरी तरह ये अल्ट्रा वोक एजेंडा चला रहा है यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर अपना ही एक प्रेसिडेंट है उनका, उसका ही जो असैसिनेशन प्लान कर रहा है वो डीप स्टेट। एक विस्कर से बचा था वो बंदा डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों बहुत सारे लोग बोलते हैं जो उधर के जो अपोजिशन है, क्योंकि उधर का जो डीप स्टेट है दैट वांट्स द वॉर्स टू गो ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन। और उस वॉर में से एक वॉर ये भी है, ये यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर ऐसा एक तुक नहीं बनता है इस वॉर का। वो जो डॉनबेस का और दूसरा एक रीजन है, वो दो रीजन रशिया को चाहिए था, रशिया को दे देना चाहिए, क्योंकि वो दोज टू एरियाज़ आर रशियन डोमिनेटेड। जो लोग हैं ना उधर रशियन स्पीकिंग डोमिनेटेड एरियाज़, फिर वो एरियाज़ को रशिया को दे देना चाहिए था। और वैसे भी नेटो का जो ये एक्सपेंशन है टू द रशियन बॉर्डर्स, कोई भी कंट्री हो अपने ऊपर जब थ्रेट होता है तो फिर वो रिएक्ट करता है, और पुतिन ने भी यही किया था। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी ने जो पहली बार बोला था, जो स्टार्टिंग वॉर हुआ था उसके बाद बच्चों को निकालने के लिए एक सीज़ फायर किया था उधर दो कंट्रीज़ के बीच में। और इधर भी जब वो उधर यूक्रेन में लैंड किए कीव में, तब उधर गोली बारूद सब कुछ रुक गया उस कीव के एरिया में, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो रिस्पेक्ट्स नरेंद्र मोदी। और ये भी आप लोगों को तो पता होगा कि ये जो वॉर है ये रशिया के इतना साथ नहीं गया अभी तक, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा ब्रेवरी जो दिखाया है ना यूक्रेनियन फोर्सेस ने, नंबर्स उनका कम है पर अब भी वो लड़ रहे हैं, डट के लड़ रहे हैं। जो भी बोलो दैट दोज गाइज हैव बॉल्स ऑफ स्टील, और वो स्टील बॉल्स ऑफ स्टील के कारण ही वो उधर अभी तक लड़ रहे हैं। ये बोल सकते हैं कि उधर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट के कारण लड़ रहे हैं, पर वो सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो दिस पीपल आर विलिंग टू फाइट टिल दी एंड। पर यही है कि टिल दी एंड उनको फाइट करना पड़ेगा, और वॉर ऑफ एक्ट्रेशन में हर टाइम एंड में आके जो अपने लोगों को सबसे ज़्यादा कुर्बान कर सकता है वही कंट्री जीतेगा। और जिस कंट्री के पास इतने ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, वो कैसे जीत सकता है यूक्रेन? तो वॉर ऑफ एट्रिशन में एंड में जाके यूक्रेन विल हैव टू सरेंडर, और वो सरेंडर अगर नहीं करना चाहते तो फिर दे हैव टू रीच अ पीस ट्रीटी। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो डिक्टेट कर सकता है, बोल सकता है लोग दोनों कंट्री से कि आप ऐसे 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 एक पैरामीटर्स रखिए और इन पैरामीटर्स के अंदर आप पीस डील ऑर्गेनाइज़ कीजिए। क्योंकि ये जो यूएसए का जो एक प्लान है वो तो उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनका बहुत सारा जो एक मिलिट्री का एक सेलिंग वेलिंग पॉइंट है, वो सब कारण वो इधर वॉर्स तो जारी रखना ही नहीं चाहता है, सब जगह जारी रखना चाहता है, सब जगह अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। चाइना को सराउंड करने के लिए और इंडिया को कंटेन करके रखने के लिए एक बांग्लादेश में जाके अपना रिजीम चेंज कर दिया, पर उधर भी फंस गए, क्योंकि उधर जो रेडिकल्स हैं दोज रेडिकल्स डोंट केयर अबाउट यूएस, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो उधर एंड में वही पावर में आएंगे। उनके पावर आने के बाद में इकोनॉमी और भी ख़राब होगा, और एंड में जाके इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि द जोग्राफी इज़ एडवांटेज इंडिया। वो पूरा जो एरिया है 95% जो एरिया है उस पूरी तरह इंडिया सराउंड दैट एरिया, फिर इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उधर। और ये जो यूएसए में जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन विल डिसाइड दिस वॉर। अगर इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, क्योंकि मेरे ख्याल से तो डोनाल्ड ट्रंप को ही जीतना चाहिए, दिस बबल कॉल्ड मीडिया बबल कॉल्ड कमला हैरिस, जो बाइडेन का 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहती है,
वो तो जीतने वाले नहीं है मेरे ख्याल से। अगर असली में इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर हुआ उधर तो फिर वो जीतने वाले नहीं है। अगर इलेक्शन में ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको वोट करने दिया, और भी बहुत सारे जो इलीगल लोग हैं, जो मेल इन बैलेट्स हैं, उन सब लोगों को करने दिया तो फिर जीत सकती है। जैसे पिछली बार भी मेरे को तो पूरी तरह लगता है कि पूरा रिग था वो इलेक्शन पूरा रिग्ड इलेक्शन था। उस इलेक्शन के रिग होने के बाद ही लोगों ने सड़क में आके और उनका जो कैपिटल है उधर भी कब्जा करने की कोशिश की। तो फिर देखते हैं उधर क्या होता है। यूएस तो अभी बहुत वॉलेटाइल सा एरिया बन चुका है, और वॉलेटिलिटी इज़ गोइंग टू कॉस्ट विच कंट्री यू डोंट नो। ओके, दिस यूएसए इज़ अ बिग डैडी ऑफ ऑल कंट्रीज़, और हम लोगों को देखना चाहिए क्या होगा उधर। और यूक्रेन में जाके नरेंद्र मोदी हैज़ बैलेंस्ड इट आउट ऑल्सो वेरी वेल। इंडिया हैज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, दैट्स वाई ऑल्सो यूएस इज़ ऑल्सो वेरी एंग्री विद इंडिया। इंडिया से बहुत ज़्यादा एंग्री है यूएस से, क्योंकि इंडिया का जो ये एक फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रलिटी है और जो इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, वो ऑटोनॉमी को यूएस वांट टू करोड दिस ऑटोनॉमी, और वो करोड करने नहीं देगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट। और वो जो भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही तरीके से बोलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी इंडिया में भी कोशिश किया था जो इधर के जो आर हैं उनके द्वारा, फिर क्या होता है देखते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों, और क्या होता है देखते हैं।